उप्पल क्षेत्र के विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने कहा कि उप्पल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उप्पल क्षेत्र के रमंतापुर डिवीजन की विविध कॉलोनियों का पार्षद बंडारू श्रीनिवानी वेंकटराव के साथ मिलकर दौरा किया। इस दौरे के दौरान स्थानीय कॉलोनी वासियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। लोगों ने इस अवसर पर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए विधायक को ज्ञापन भी सौंपे। जनता की मांग तथा ज्ञापन ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी समस्याओं का शीघ्र परिष्कार किया जाए। आगामी वर्षा काल को दृष्टि में रखकर गत वर्ष की भांति समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार से विकास कार्य पूर्ण करने के सुभाष रेड्डी ने अधिकारियों को आदेश दिए। इस अवसर पर पार्षद बंडारू श्रीवानी ने बताया कि उनके डिवीजन की कई समस्याएं हैं, जिन्हें विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ चरणबद्ध रूप से परिष्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर उप्पल क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर अरुण कुमार भी उपस्थित थे। उन्होंने भी किए जा रहे कार्यों के विधायक को जानकारी दी। సమస్యలు గత వర్షం వచ్చిందంటే ఒక భయాందోళనకు గురవుతున్న ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా గతంలో మరి రోడ్లు ఉండడం వల్ల అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉండడం వల్ల వాటర్ స్టాగ్నెంట్ కావడం, అదేవిధంగా మరి నాలలో షిల్ట్ తీసి మరి అక్కడనే పెట్టడం వల్ల కొంత ఇబ్బంది, వర్షం వచ్చినప్పుడు అందులోకి పోవడం, ఇటువంటి నాలాలు క్లియర్ లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది అని చెప్పగానే వెంటనే మరి తడవనే రావడం జరిగింది. నిజంగా ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత చూస్తే చాలా బాధ అనిపించింది. పాత ఊరు కాబట్టి ఈ ఊర్లో ఉన్న సమస్యలు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటున్నాయి. వాటన్నిటి కూడా లెవెల్ చేయాలి, వెంటనే శాంక్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పి గతంలో 3-4 నెలల క్రితం నాకు రికమెండ్ చేసినప్పుడు మరి దాన్ని ఎస్టిమేషన్ 54 లక్షలతో కూడా ఎస్టిమేషన్ పెట్టుకోవడం, ఆ నాలను క్లియర్ చేసుకోవడంతో పాటు దాన్ని రోడ్ వేయడం కూడా జరుగుతుంది. అందులో బాగానే కొంత వాటర్ కూడా రావట్లేదని చెప్తా ఉన్నారు, కొంత కలుషిత వాటర్ ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. దాన్ని కూడా పైపాను ఇప్పుడు దాదాపుగా 200 కోట్ల రూపాయలు హైదరాబాద్ శివారు మున్సిపాలిటీ శాంక్షన్ ఉంటే అందులో నుంచి 60 కోట్ల రూపాయలు మనం ఉప్పల్కి తెచ్చుకున్నాం. 120 కిలోమీటర్ ఏరియా మొత్తం రీడైన్ ఇంతకుముందు ఉన్నది కూడా రీడిజైన్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ పైప్ లైన్ కొత్తగా వేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి వాటిని కూడా తీసుకొచ్చినాం, వాటిని కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం. అది స్టెప్ బై స్టెప్ పనులు అయితే ఉన్నాయి. గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారితోనూ మరియు అందరి డిపార్ట్మెంట్లో ఈ గారు కానీ, డీసీ మేడం కానీ, వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ జీఎం గారు కానీ అందరితోని కాలనీ పర్యటించడం జరిగింది. ఇక్కడైతే కాలనీ వాళ్ళ సమస్యలు కొన్ని సీసీ కెమెరాలు కావాలని అడిగారు. స్ట్రీట్ నెంబర్ 4లో యూజీడీ సమస్య, మంచినీటి సమస్య, ఇలా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. అయితే ఇవన్నీ మేము ఈ గారికి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. జీఎం గారికి కూడా వాటర్ లైన్స్ గురించి, యూజీడీ లైన్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళ సమస్యను తొందరలో పరిష్కారం చేస్తాము అని వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది. राज्य के शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी का जन्मदिन समारोह बड़गमपेट क्षेत्र में भव्य रूप से आयोजित किया गया। मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर मातृदेवो भव अनाथालय में महा अनुदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि आज अपने जन्मदिन के अवसर पर अभाग्य लोगों को अन्नदान करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने सबिता इंद्रा रेड्डी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंत्री सविता अम्मा इस प्रकार के अनेकों जन्म दिवस मनाते हुए जनता की सेवा में समर्पित रहे, यह उनकी कामना है। इस अवसर पर बड़ंगपेट कॉरपोरेशन के ऑप्शन सदस्य मरी जगन मोहन रेड्डी, कॉरपोरेशन के बीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष कोटगिरी जंगैया नादरगुल, टीआरएस पार्टी के नेता के तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में नदरगुल ग्राम टीआरएस पार्टी के नेता कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। బాలాపూర్ గ్రామంలోని 15, 16, 17 డివిజన్లలో మన విద్యాశాఖ మంత్రులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఘనంగా వేడుకలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. మరి మేడం గారు ఇదే విధంగా అనేక జరుపుకొని మరి ఉన్నత శిఖరాలను ఎన్నో అధిరోహించాలని కోరుకుంటూ మరి ఈ యొక్క జన్మదినాన్ని మరి ఎప్పటికీ కూడా గుర్తుండే విధంగా బాలాపూర్ గ్రామంలో ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మరి మన లక్ష్మారెడ్డి అన్న గారు, లక్ష్మీ అక్క గారు కూడా బర్త్డేని కూడా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీని కూడా ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. వారికి కూడా మరి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముగించుకుంటున్నాను. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नाम राहुल जी आप व्हाइट चैलेंज के लिए तैयार है कहते हुए नगर में चारों तरफ यही बैनर लगे हुए हैं।
यह बैनर राहुल जी को चुनौती दे रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी तेलंगाना राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। इसी क्रम में यह बैनर शहर के कई क्षेत्रों में दर्शन दे रहे हैं, जिसमें राहुल की व्हाइट चैलेंज के लिए आप तैयार है क्या लिखा हुआ है। गन पार्क, टैंकबोन आदि क्षेत्रों में रातों रात यह बैनर लगे हैं। वास्तव में देखा जाए तो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ही इस व्हाइट चैलेंज के हकदार है। पूर्व में रेवंत रेड्डी ड्रग्स मामलों को लेकर कई बार सरकार पर बरसते हुए आलोचनाओं की बौछार किए थे। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी केसीआर को भी चुनौती दिए थे। उस समय रेवंत रेड्डी ने केटीआर को चुनौती देते हुए व्हाइट चैलेंज के लिए तैयार है क्या कहते हुए आंदोलन आरंभ किए थे। उस समय मंत्री केटीआर ने व्हाइट चैलेंज के लिए मैं तैयार हूं कहते हुए क्या इसके लिए राहुल गांधी भी तैयार है कहकर चुनौतियां फेंकी थी। उसके बाद यह मुद्दा समाप्त हो गया। अब वही मुद्दा फिर से जनता के सामने उठा है। हाल ही में नेपाल में संपन्न हुए एक विवाह कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए थे। उस विवाह संबंधी एक वीडियो विवादास्पद हो गया था। अब जिन लोगों ने व्हाइट चैलेंज के पोस्टर तैयार किए हैं उसमें उसी के चित्र के साथ प्रकाशित किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने आर यू रेडी कहते हुए राहुल गांधी को चुनौती दी है। ऐसे संदर्भ में राहुल गांधी को व्हाइट चैलेंज में भाग लेने की बात करते हुए यह फ्लेक्सो लगाई गई है, जिन्हें जीएचएमसी के अधिकारियों ने हटा दिया। 7 मई को उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रस्तावित राहुल गांधी की सभा को विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनुमति न दिए जाने के विरोध करते हुए विद्यार्थी संघों ने नेताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मामले में टीआरएस विद्यार्थी विभाग के नेताओं तथा सर्वदलीय विद्यार्थी संघ के नेताओं के बीच वार संघर्ष चल रहा है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ बैठक आयोजित करने के लिए राहुल गांधी को अनुमति देने की एनएसयूआई, एआईएसएफ तथा अन्य छात्र संघों के उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में कुलपति ने यह कहते हुए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि राजनीतिक दलों की सभा बैठकों के लिए विश्वविद्यालय प्रांगण न देने संबंधी निर्णय के तहत राहुल गांधी की बैठक को अनुमति नहीं दी जा सकती है। कुलपति के इस फैसले से उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रांगण में तनाव छाया हुआ है। वीसी के इस निर्णय का विरोध करते हुए एआईएसएफ छात्र संघ के नेताओं ने कुलपति का पुतला जलाया, जिससे वहां एकदम वातावरण बदल गया और तनाव छा गया। पुतला जलाने की घटना को लेकर उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में भारी पैमाने पर पुलिस बलों को तैनात करवा दिया है। साथ ही पुलिस ने आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। మీద నెట్టివేయడం అంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు యూనివర్సిటీ స్వయం ప్రతిభని ప్రభుత్వానికి తాకట్టు పెట్టినని। ఇట్లాంటి దుర్మార్గం, ఇట్లాంటి ఒక దౌర్భాగ్యమైన విషయం ఇది। యూనివర్సిటీ స్వయం ప్రతిపదని ప్రభుత్వాల మీద కోర్టుల దగ్గర నెట్టివేయడం అంటే, ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ అంటేనే స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు। ఇది ఒక అటానమస్ బాడీ। ఇలా దీని మొత్తం ప్రభుత్వం దగ్గర తాకట్టు పెట్టి ప్రభుత్వం యొక్క చెంచలాగా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ వ్యవహరిస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి అందుకే ఆయన దిష్టిబొమ్మ దానం చేయడం జరిగింది। అంటే మొత్తానికి మీరు వీళ్ళు అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వాలన్నా మీరు ఏమంటున్నారు? ఏ నిర్ణయం తీసుకునే రైట్ యూనివర్సిటీకి ఉన్నది కాబట్టి యూనివర్సిటీ ఆ స్వయం ప్రతిపదని కాపాడి యూనివర్సిటీ స్వతంత్రంగా ప్రభుత్వానికి తలపకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని మేము చెప్తా ఉన్నాం। స్వాగతిస్తున్నారా మీరు సభకు? రాహుల్ గాంధీని స్వాగతిస్తా ఉన్నాం। అది చెప్పాలి। हैदराबाद शहर में एक व्यक्ति पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिस कारण वह बेहोशी की हालत में चला गया। यह घटना हैदराबाद के कारवान क्षेत्र में घटी। लंगर हाउस निवासी निखिल अपने मित्र पानू गंटी को धूलपेट के जाली हनुमान के पास अपनी बाइक पर छोड़ने के बाद वापस घर लौटते समय रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश पड़े निखिल को मैत्री अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जिसका उपचार जारी है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि निखिल की हालत काफ़ी गंभीर एवं चिंताजनक बनी हुई है। इस हमले के संबंध में मामला दर्ज किए पुलिस ने बताया कि इस हत्या की कोशिश के कारणों का पता लगाने के कोण से पुलिस ने तहकीकात कर रही है। వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నాకు ఫోన్ వచ్చింది పోలీస్ నుండి। వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నేను మీరు యాక్సిడెంట్ అని చెప్పారు కదా అని అంటున్నారు, కానీ యాక్సిడెంట్ అయిన దెబ్బలు బాడీ మీద అన్నిటి తాకాయి।
బాడీ పైన చిన్న స్క్రాచ్ కూడా లేదు, మొత్తం ఇంటి పైననే ఉంది. हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस थाना क्षेत्र में एक अमानवीय घटना घटी। यह लगभग 16 बच्चों को उनके कपड़े उतारकर पूरी तरह से नग्न अवस्था में उनके साथ मनमाने ढंग से हमला किया गया। यह मामला कुछ विलंब से प्रकाश में आया है। इस मामले से संबंधित वीडियो सामाजिक माध्यमों पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिए आरोपियों की पहचान राहुल हरिकिरण अमेल के रूप में की है। पुलिस इन आरोपियों पर जुवेनियल जस्टिस एक्ट आईपीसी सेक्शन 324 तथा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह के पास पीए के रूप में काम करता है, ऐसा प्रचार चल रहा है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुछ बच्चे मंगलहाट क्षेत्र परिधि में स्थित एक सुनसान क्षेत्र में ताश खेल रहे थे। उसी क्षेत्र में संबंधित इन तीनों ने उन बच्चों को अपने पास बुलाकर वहां से भगा दिया। इस क्रम में उन्होंने बच्चों के कपड़े उतरवा कर प्लास्टिक पाइप से बच्चों की पिटाई कर उन्हें भविष्य में ताश न खेलने की चुनौती दी। हैदराबाद में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे साग सब्जियों के दाम सामान्य लोगों को तारे दिखा रहे हैं। हैदराबाद में हर प्रकार की सब्जी के दाम 40 रुपए प्रति किलो की दरों से अधिक हो रही है। इनके दाम गत एक सप्ताह में घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। साग सब्जी के बढ़े हुए दामों से सामान्य जनता खासी तकलीफों का सामना कर रही है। लोगों का कहना है कि यह महंगाई हम पर अतिरिक्त भार लाद रही है। इस समय हैदराबाद में 1 किलो टमाटर की कीमत 60 रुपए है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार किसानों ने टमाटर की अच्छी फसल लगाई है, जिससे उत्पादन भी अधिक हो रहा है, फिर भी साग सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। वहीं खुर्दा व्यापारियों का कहना है कि टमाटर का स्टॉक न होने से ही इसके दाम बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार कच्ची मिर्ची के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। इसे देख लोगों की आंखों में पानी आ रहा है। इस समय कच्ची मिर्ची के दाम 60 रुपए चल रहे हैं। ऐसे साग सब्जियां मांग के अनुरूप उपलब्ध नहीं हो रही है। यह भी कारण है कि साग सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। वही सामान्य लोगों का कहना है कि निजी मार्केटों में सब्जी के दाम मनमाने ढंग से चल रहे हैं। इस समय कच्ची मिर्ची के दाम 60 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो है। यह ऐसा हो तो वर्तमान समय में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे साग सब्जियां मांग के अनुरूप उपलब्ध नहीं हो रही है। यह भी कारण है कि साग सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। वही सामान्य लोगों का कहना है कि निजी मार्केटों में सब्जी के दाम मनमाने ढंग से चल रहे हैं। टीआरएस पार्टी निजामाबाद जिला अध्यक्ष तथा टीआरएस पार्टी के विधायक जीवन रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी चिंतन की पार्टी है तो वही भारतीय जनता पार्टी झुकने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद मुख्यमंत्री केसीआर के संबंध में मनमाने ढंग से टिप्पणियां कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि यदि सांसद अरविंद अपने व्यवहार शैली में बदलाव नहीं लाते हैं तो उन्हें यथास्थान आड़े हाथों लेते हुए उन्हें उचित सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टियां जो कर रहे हैं उसे जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ही नहीं देश की जनता मुख्यमंत्री केसीआर को देश का नेता बनाने के लिए तैयार बैठी है। इतना ही नहीं, राज्य में अमल की जा रही योजनाओं को भी देश भर में लागू करने की मांग कर रहे हैं। బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చింది ఈ దేశంలోనే ఓట్ల కోసం బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిన ఏకైక ఎంపీ ఎవరన్నారంటే అది ఈ నిజామాబాద్ అరగుండు ఎంపీ అరవింద్. ఈయన ఏడీ కాదు, బూత్ పురాణాల సీడీ. ఆయన మాట్లాడితే అన్ని బూత్ పురాణాలే, ఒక్కటి కూడా చక్కగా ఉండయి. ఆయన ఏడీ కాదు, బూత్ పురాణాల సీడీ అంటున్నాం ఆయన. మేము ఆయనే గెలిచిన వెంటనే ఆయన రాసిచ్చింది. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధి ప్రాంత రైతన్నలకు సవినయంగా నమస్కరించి తెలియజేస్తూ చాలా సార్లు చెప్పిన, కానీ ఆడి జీవితాంతం చెప్పాలి. మరి ఈ నడ్డా బిడ్డ మళ్ళోసారి చెప్తున్నది తెలంగాణ అడ్డా అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకో. ఇది కేసీఆర్ గడ్డ అని గుర్తుపెట్టుకో. ఇక్కడ నీ మాటలు చెల్లవు. గతంలో నువ్వు మాట్లాడినవే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి గల్లీ మాటలు చెప్పకు. నువ్వు మోడీ బ్రేక్ డాన్సులు చేసినా, మీ గుండు అరవింద్, తొండి సంజయ్ మరి మోకాళ్ళ యాత్రలు కాదు, వాళ్ళు పొంగి పొరలాడి దండాలు పెట్టి యాత్రలు చేసినా గానీ మరి మీరంతా ఒక టూరిస్టులాగా, మా మంత్రి టూరిస్ట్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా,
వారి ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర మంత్రులు స్వయంగా మోడీ అమిత్ షా గారు కూడా ఒక టూరిస్టులుగా యాత్రలకు వస్తారు పోతారు, టూరిస్టులుగా భావిస్తాం మేము. వారితో ఒరిగేది ఏం లేదు. మీరు ఎన్ని చేసినా గానీ తెలంగాణలో బీజేపీకి వచ్చేది సింగిల్ డిజిట్ మాత్రమే అని చెప్పి సందర్భం. आंध्र प्रदेश की मंत्री रोजा ने कहा कि कोरोना के कारण गत 2 वर्षों से सभी खिलाड़ी अपने घरों तक ही सीमित हो गए हैं। विजयवाड़ा इंदिरा गांधी नगर निगम में सांप के तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविरों का रोजा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री रोजा ने आचारी प्रशिक्षण शिविर के पास धनुष पर तीर चढ़ाया। उन्होंने बताया कि यहां 48 विभागों से संबंधित खेलों का शुभारंभ किया गया है। पूरे आंध्र प्रदेश में राज्य में कुल 11,1670 ग्रीष्मकालीन शिविर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर YSR क्रीड़ा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से हम ग्रामों की मिट्टी से हीरों को तलाश कर निकाल सकते हैं। इसके पूर्व रोजा ने पश्चिम गोदावरी जिले में बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। प्रमुख चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वह किसी प्रकार की कोई रणनीतिकार पार्टी का गठन नहीं कर रहे हैं। ऐसा पता चल रहा है कि उन्होंने इस दिशा में अपना मार्ग का चयन कर लिया है। प्रशांत किशोर ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से वह पूरे बिहार राज्य में 3000 किलोमीटर तक पद यात्रा कर जनता से मिलते हुए उनके विचारों तथा उनकी भावनाओं को समझेंगे। उन्होंने बताया कि इस पद यात्रा के दौरान वे जितना हो सके उतने लोगों से मिलकर उनके विचार इकट्ठा कर अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। उन्होंने इस कार्य को नई सोच नया प्रयास के रूप में अभिवर्णित किया है। इस संदर्भ में मेरी जो सोच है और जो मेरी भूमिका है उसके बारे में मैं 2 बात आज बताने वाला हूं। जैसा कि आप प्रेस में या अदरवाइज कई जगह मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूं या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूं। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूं, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना। पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है, मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में एक दुखद घटना घटी। यह जेबीसी के टायर में हवा भरते समय अचानक वह टायर बड़ी ध्वनि के साथ फट गया, जिससे घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना रायपुर के सिलतारा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक गैरेज में घटी। इस घटना से संबंधित वीडियो सामाजिक माध्यमों पर काफी वायरल हो रहा है। इस ऑडियो को ध्यान से देखा जाए तो गैराज में काम करने वाला एक व्यक्ति जेबीसी के टायर में हवा भर रहा है। इतने में बाजू खड़ा एक व्यक्ति उसके करीब आकर जेबीसी के टायरों को अपने 2 हाथों से दबाकर देखता है। इसी दौरान टायर में प्रेशर बढ़ जाने से वह एकदम फट गया। टायर में हवा भर रहा व्यक्ति तथा उसे दबाकर जांच करने वाला व्यक्ति दोनों मानव हवा में उड़ गए और वह क्षेत्र में धुएं जैसा धूल उड़ाकर एक विचित्र सा वातावरण बना दिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 2 व्यक्तियों में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। यह दोनों भी मृतक मध्य प्रदेश के निवासी है। इस बात की स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की।